So we had 194,481 upon 8 into 20 minus 1000. So what we get, this is 160. So write 194,481. 160 into 1000 कितना होता है? Is it clear? Yes, students. Yes, Is sir. this part clear? अभी इसमें से 1,60,000 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमरेटर से, so what we get 34,481 अपॉन 160. so इसको हम 160 से डिवाइड अगर करते हैं तो हमें कितना आता है 215.50 एंड समथिंग. so that means this is the simple interest, sorry compound interest. so देखो हाफ ईयरली हमें कितना ज्यादा मिला, 5 रुपीज ज्यादा मिला. समझ में आया? In normal calculation, we had got 210. Do you remember, students? Yes. Yes, sir. So this is, so half yearly अगर आप interest charge करोगे compound interest, so that will be beneficial for you all. Is this clear? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Now we come back to our question. Heroes down. Please be on mute. The bank offers rate of interest is equal to 5%. Calculated half yearly. Okay. ये आपको क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट सीख लो. 7th में आएगा. मिस्टर जोशी डिपॉजिट्स ₹1600 ऑन 1st जनवरी. तो 1st जनवरी को he has deposited ₹1600 and on 1st July को भी किया है. 1st July again he has deposited ₹1600. At the end of the year, the amount he gained by the way of interest is how much? Abhi for this 1 year, for 12 months, okay, this 1 January has 2 periods because 6 and 6, 12. So here number of years is equal to 2. Yes or no? N is equal Yes, to sir. and here n is equal to 1. अभी इसको हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, ये हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया है फॉर हाफ ईयरली. इज इट क्लियर? Yes, sir. देखो स्टूडेंट्स, let's say they are talking about 2023 only. 2023 से लेके we have to calculate at the start of 2024. So this is 1 year, correct? Yes, students. Yes, sir. 1st जुलाई से ये कितना होता है? 1st जुलाई से ये होता है 6 months. ओके. अभी हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो नंबर ऑफ ईयर 1 ही हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी 6 months का ही पीरियड है. और यहाँ से ये कितना होता है 12 months, करेक्ट? अभी हमें हाफ ईयरली करना है, तो इसके लिए डिवाइड बाय 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, n हमारा हो जाएगा 2. इज दिस क्लियर? Yes, sir. अभी ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है ये भी किसके हिसाब से दिया है? Half yearly. तो हम इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे क्या? No, नहीं. sir. क्वेश्चन रीड करो. इट इज रिटन 5% पर एनम. तो पर एनम का मतलब क्या होता है? पर ईयर. मतलब in a Yes. year. In a तो year. यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2.5 2.5. और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? But sir, it is written here, it is calculated on a half yearly basis. So wouldn't that be like already? लिसन टू मी. पहली बार जब पर एनम लिख दिया है ना, तो उसका मतलब है पर ईयर का हो गया वो 5%. एंड कैलकुलेशन इज डन हाफ ईयरली. Here also in the previous question we had written rate of interest as 10% and then we had written that it is done half yearly. Okay, so half yearly का मतलब है वो calculation में हमें change करना पड़ता है. Is it clear everyone? Okay, sir. Sir, why did you take Jan as like 2 periods and July as only 1? जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने ही होते हैं. Yes, sir. तो हाफ ईयरली के लिए वो 1 पीरियड ही हो गया. Yes. जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने हो जाएंगे, तो 2 पीरियड 6 मंथ्स के. Okay, okay. अभी कैलकुलेशन क्या होगा फॉर 1st जनवरी के लिए? 1600 मल्टीप्लाइड बाय
1 plus 2.5 upon 100 raised to 2 minus 1600 plus 1600 multiplied by 1 plus 2.5 upon 100 raised to 1. Is it clear? Minus 1600. यही कैलकुलेट करना है हमें. Yes or no? Yes, sir. Okay. Now see, we have, this is minus 1600 minus 1600, correct? ये common है, ये 1600 भी common है. So can we write this as, अभी part पहले simplify कर रहा हूँ. Please be on mute. Students, Arab Mamata, please be on mute. I am simplifying this part. 1600 multiplied by some number is given. So we'll write as it is 1 plus 2.5 upon 100 raised to 2. Okay. Can we write this minus 6? अभी ये कैलकुलेट करने के बाद इसमें से -1 करेंगे तो हमें सेम मिलेगा आंसर. देखो 1600 multiplied by this is this part. Minus sign as it is 1600 into 1 is this part. Is it clear? Yes, sir. ये हो गया इसके लिए. अभी प्लस साइन यहाँ पर भी सेम हो जाएगा. 1600 multiplied by 1 plus. हाँ पलाश बोलो क्या डाउट है? Sir, I did not understand the second step which you are doing. अभी consider this as a into b minus a. So can we write down this as a into b minus 1? अगर मैं इसको लिखूं 4 into 3 minus 4, so इसका आंसर क्या आएगा? 8 आएगा. And if I convert this into the given format 4 into 3 minus 1, तो भी 8 आंसर आएगा. अभी समझ में आया? Yes, sir. Is it clear everyone? Yes, sir. अभी इन दोनों में भी सेम है. 16 into this plus 1600 into this. So can we write down as 1600 multiplied by 1 plus 2.5 upon 100 the whole square minus 1. ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट के लिए. प्लस 1 plus 2.5 upon 100 raised to 1 minus 1. समझ में आया? अगेन वी डिड द सेम थिंग. जो कॉमन है वो एज इट इज कॉमन लिया. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Is it clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. अभी चलो ये वाला पार्ट Yes. सॉल्व करते हैं. ओके. सो इट इज 1 plus 2.5 upon 100 the whole raised to 2. So 100 will go. So what you get? 100 plus 2.5 upon 100 the whole square, correct? So what you get? 102.5 into 102.5 upon 100 into 100. Is it clear? Yes. And then -1, correct? तो यहाँ पर -1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये चले जाएगा यहाँ पर माइनस करने. तो क्या हो जाएगा? 102.5 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर upon 100 into 100. Is this clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Students, don't worry, such sum is not going to come in the exam, तो इतना टाइम नहीं जाएगा. अभी हम सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं. ओके? Okay, sir. नहीं भी समझ आता है तो कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है. अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दिस इज ऑफ द फॉर्मेट a square minus b square. Okay, this is an identity. Now this identity opens up as a plus b multiplied by
a माइनस बी, ये सिर्फ न्यूमरेटर के लिए, ठीक है। तो a प्लस बी कितना हो गया, a क्या है आपका 102.5 और b क्या है 100, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 202.5 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच 2.5 2.5. अपॉन 100 into 100 एज इट इज। समझ में आया? Yes, sir. Sir, we can also cut Are 100 you into 100 understanding? and 100. मिहिका, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. हाँ गर्गी बोलो। Sir, I did not understand why did you take minus 100 square? जब हम फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं a अपॉन बी माइनस 1 तो क्या हो जाता है, a माइनस बी अपॉन बी हो जाता है। Yes, sir. तो ये 100 into 100 क्या होगा, 100 स्क्वायर हो जाएगा ना, Okay, 1। thank you. तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, अभी तक तो हमने एक पार्ट सॉल्व किया है, ठीक है। सो दिस पार्ट वी हैव सॉल्व्ड, सो आई विल पुट अ टिक। यहाँ पर क्या होगा, देयर इज नो स्क्वायर, सो इट इज वेरी सिंपल, 102.5 माइनस 100 अपॉन 100। समझ में आया कैसे? फर्स्ट विल सॉल्व दिस ब्रैकेट, सो 100 विल मल्टीप्लाई बाय 1 एंड रेज टू 1 मतलब उतना ही होता है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 100 प्लस 2.5 अपॉन 100 and ये minus 1 as it is. So again this 100 will multiply over here. So 100 plus 2.5 minus 100. So 100 and 100 cancel. So you get 2.5 upon 100. Is it clear? So this is our first part. हमने -1 अभी कर दिया है, okay? So we have 202.5 into 2.5 upon 100 into 100 minus, sorry, plus करना है ना, 2.5 upon 100 and this has to be multiplied by what, 1600. Is it clear? Yes, sir. अभी इन दोनों का LCM क्या होगा, 100 into 100, Yes. 10,000. हाँ तो मल्टीप्लाई मत करो, 100 into 100 हो जाएगा ना बेसिकली। तो दिस न्यूमरेटर विल कम एज इट इज 202.5 into 2.5 plus 100 goes in this 100 times, so 100 into 2.5 कितना होता है 250 250. मल्टीप्लाइड बाय 1600। सो ये दो जीरोस और ये दो जीरोस तो कैंसिल हो गया। अभी हमें क्या सॉल्व करना है, ये पार्ट सॉल्व करना है। अभी 202, सो 202.5 इंटू 2.5 करेंगे तो आएगा हमें 506.25 प्लस 250 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 16। So then we get this as 756.25 upon 100 into 16. ठीक है? When you calculate this, you will get the final answer as 121. Is 121 there in the option? Yes, sir. Third Option 3. देखो Yes, sir. अभी इतना बड़ा सम है, ये आपको एग्जाम में पूछ ही नहीं सकते। अभी I don't know how they have asked this or is there any other method for this, okay? But अभी जो हमने वर्किंग किया है, this is the proper method to solve this question. अभी how many of you have not understood this method? Palash, okay, many students, 4, 5. क्या डाउट है देशना आपको? सर मुझे कैलकुलेशन नहीं समझ रहा है अच्छे से। ठीक है, कैलकुलेशन छोड़ के बाकी समझ में आया क्या जो हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं? हाँ आप फ्रैक्शंस को ऐड करना आता है आपको? हाँ सर। हाँ, हमने आधे टाइम वही किया, सिर्फ जो कॉमन लिया है ये पार्ट आपको आई थिंक डिफिकल्ट गया होगा, हाउ वी हैव टेकन दिस कॉमन। हाँ पलाश, व्हाट इज योर डाउट? Sir, same. ओके, सबको कैलकुलेशन डाउट ही है? यस Yes, सर, sir. ब्रैकेट समझ नहीं आया सर, आपने वो बाहर लिया। ठीक है,
अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ये देखो आप, ठीक है। और क्योंकि वो ऐड होना चाहिए इसलिए वो समझ में नहीं आया कि आपने कॉमन क्यों लिया। हाँ तो अभी देखो, ये अगर हमें है 15 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 15 है, ठीक है। तो कैन वी राइट दिस एज 15 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 अपॉन 100 माइनस 1। जब हम ब्रैकेट्स, आपको ब्रैकेट सॉल्व करना आता है? अभी मुझे बताओ। हाँ सर, you can write it like हाँ that. सर। हाँ रुको, a इंटू बी माइनस ए अगर मैंने लिखा है, तो इफ आई राइट दिस एज a इंटू बी माइनस 1, इज इट द सेम? हाँ सर। देखो a इंटू बी Yes, क्या हो sir. जाएगा, ए बी, a इंटू माइनस 1 माइनस ए, तो हमें सेम मिल गया जो ऊपर लिखा है। हाँ हमने यहाँ पर सेम किया है। अभी देखो यहाँ पर 1600, यहाँ पर 1600 कॉमन है, तो कैन वी कैन राइट दिस एज, कंसिडर दिस एज a, दिस एज b एंड दिस एज a अगेन, ओके। तो यहाँ पर हमने, प्लीज बी ऑन म्यूट यथार्थ, बैकग्राउंड से बहुत डिस्टर्बेंस है आपके। तो वी हैव लेट्स से 1600 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2.5 अपॉन 100 रेज टू 2 माइनस 1600। कैन वी कंसिडर दिस सेम a इंटू बी माइनस a? यस सर। अभी हमने कॉमन क्या लिया, Yes, sir. a कॉमन लिया, तो हम इसके लिए लिखेंगे 1600 कॉमन। फिर हमने ब्रैकेट्स में क्या लिखा, b कितना है, ये पार्ट है, तो 1 प्लस 2.5 अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा, -1। वाई माइनस? माइनस। बिकॉज a कॉमन है, तो -1। अभी समझ में आया? हाँ सर। हाँ जिनको सर. भी ये ब्रैकेट का डाउट था, समझ में आ गया? अगर हाँ। समझ में आ गया तो प्लीज लोअर योर हैंड। ओके गर्गी, व्हाट इज योर डाउट? Sir, I did not understand like when you did that 1 plus 2.5 divided by 100 square, when you solve those things. ओके ठीक है, फ्रैक्शन ही है वो। इट इज a प्लस b अपॉन c, कंसिडर दिस, ओके। a इज इक्वल टू 1, b is equal to 2.5, c is equal to 100. How do you solve such fractions? We take LCM as c, 1 and c का LCM 1 will go in c times, so a into c हो जाएगा plus b, correct? So what we did, 1 plus 2.5 upon 100 था, the whole square, correct? तो पहले हम ब्रैकेट के Yes, sir. अंदर सॉल्व करेंगे, तो इसका LCM क्या हो जाएगा, 100, 1 will go in 100 times, so 100 into 1, 100, 100. 2.5, so we got this as 102.5 upon 100 the whole square. Yeah. हाँ, अभी इसको हम स्क्वायर करेंगे तो आप, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, तो रुक जाओ। अभी आप लिखो 102 पॉइंट, अभी इसके आगे क्या था, -1 था ना यहाँ पर हमारे Yes, कैलकुलेशन sir. में। वेयर इट इज, यहाँ पर है, ये जो -1 है, ये कैलकुलेट करने का हम सोच रहे हैं अभी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अभी, 102.5 द होल स्क्वायर लिख दो अपॉन 100 होल स्क्वायर -1। Yeah. Again same way, what is the LCM, 100 square, so this numerator will come as it is 102.5 the whole square minus 1 will go in this 100 square times, so 100 square into 1, 100 square. Is this clear now? Yes, sir. अब ये न्यूमरेटर जो है, सी न्यूमरेटर का फॉर्म क्या है, a square minus b square, where a is equal to 102.5 and b is equal to 100. Is it clear? Yes, sir. Okay, now to solve such thing equation, the easier format is a plus b multiplied by a minus b. The reason is a into a कितना होता है, a square, a into minus b minus ab, b into a plus ab.
b into minus b square. So minus ab plus ab cancel out हो जाएगा. So you are left with a square minus b square. समझ में आया? Yes, sir. So instead of squaring these two numbers and then finding the difference, write them as 102.5 plus 100 multiplied by 102.5 minus 100. Okay. So then क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.5 और ये हो जाएगा 202.5. जिनका ये डाउट क्लियर हो गया, प्लीज लोअर योर हैंड. Sneja, what is your doubt? Sir, I don't have doubt in this question. I have doubt in the fifth question. Please रुक जाओ. We are talking about this question, students. Prayan, what is your doubt? Sir, I didn't get the concept, like what we use for half year. What? I didn't get the concept for half year. मतलब आपको इंटरेस्ट हाफ ऑफ ईयर में कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो बेसिकली क्या है, अगर आपको एक साल के लिए पैसा दिया है, 1 ईयर के लिए, इफ यू आर गिवन द मनी, लेट्स से आई हैव लेंडेड यू 1000 रुपीज फॉर 1 ईयर, बट आई आस्क यू टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट इन एवरी 6 मंथ्स. सो अभी क्या होगा, देखो अभी आपका 1000 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट्स से 10 है, तो आपका नंबर ऑफ ईयर 1 है, तो आप नॉर्मल कैलकुलेशन से आपका 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? 100 रुपीज. Yes. बट अभी मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बोला है हर 6 महीने में करना है, तो अभी हमारे लिए क्या हो जाएगा, 1000 n is equal to 2 and rate is 5%. ओके. अभी ये आप सिंपल इंटरेस्ट इसका कंपाउंड इंटरेस्ट इसका कैसे कैलकुलेट करोगे? दिस इज अकॉर्डिंग टू 1 ईयर एंड दिस इज हाफ ईयर. ओके. हाफ ईयर के लिए हमारा रेट 5% हो गया 10 से, नंबर ऑफ ईयर 1 से 2 हो गया. अभी कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा मुझे बताओ 5% ऑफ 1000 कितना होता है? 5% of 1000. 50. तो आपका पहले फर्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना हो गया? 50. अभी नेक्स्ट 6 मंथ के लिए फिर से न्यू कैलकुलेशन होगा, तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो इंटरेस्ट आता है वो भी हम ऐड करते हैं, करेक्ट? तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए आपका टोटल क्या हो जाएगा, 1050. Yes. इसका 5% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 52.5. तो आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला एक साल में, 102.5, और यहाँ पर कितना इंटरेस्ट मिला, 100. तो 6 मंथ्स वाले में आपको 2 रुपीज 50 पैसे ज्यादा मिला. समझ में आया? सो दैट्स द डिफरेंस. Divyan, what is your doubt? Sir, I had doubt, but you told to remind me at the end of the class. I got to. हाँ वो तो करेगी. ये क्वेश्चन का डाउट है क्या? Sir, I didn't get, like, when we did 50, how did we get 52.5 after that? 1050 का 5% कितना होता है? 5%. 52.5. तो समझ में आया? Okay. स्टूडेंट्स अगर जिनको नहीं पता है, लिसन, विल नॉट स्टार्ट विद द न्यू पेपर. आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एक मैं इजी ट्रिक बताता हूँ विदाउट फॉर्मूला. ओके. लेट्स से यू हैव 1000 रुपीज. दिस इज फॉर नॉर्मल ईयरली. ओके. Yes, sir, I know. Those who know, very good. Those who are not there in the crash course or those who have not learned this, if you solve with the formula, it will become 1000 into 1 plus 10 upon 100 raised to 3, correct, minus 1000. This is your compound interest with formula. अभी विदाउट फॉर्मूला कैसे करना है मैं बताता हूँ. ओके. अगर जिनको वो मेथड इजी लगता है तो आप वो मेथड यूज करना एग्जाम में फॉर इजी कैलकुलेशंस. 1000 का 10% कितना होता है? 100. तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 100. अभी सेकेंड ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 1100. इसका 10% कितना होता है? 110. 110. अभी नेक्स्ट ईयर आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 1210.
इंटू 10 करो अपॉन 100, तो आपका टोटल इंटरेस्ट कितना आया? 121, 110 और 100, तो कितना आता है टोटल? 331. इज दिस क्लियर? और आप ये फॉर्मूला से भी करोगे तो आपको आंसर 331 ही आएगा. So I feel that the method which I have shown you right now is more easier. This is the Yes, last sir, time you I'm had going to Yes, done say. sir. this in the This is the last finals time. also. Listen. Yes. This is the last time I'm going to say, students. If you don't want to talk, please be on mute. आपके background से आवाज आ रहा है. So how do you get 331? 100 plus 100 plus 100, 300. 10 plus 21, 31. Okay, sir. Is this clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. So for compound interest, sir. you can use this method. This is more convenient, more easier. अगर rate of interest 10, 20 जो भी है, आपको क्या करना है? फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल में वो ऐड कर देना है. ओके, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला देन सिंप्लीफिकेशन, तो आप ये कर सकते हो. दिस इज मोर इजियर वे. इज इट क्लियर? Yes, sir. And Yes, sir. 10% find out करना is very easy. Just divide the principal by 10. Okay. जिनको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट? क्वेश्चन क्या है? हाँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है एक ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना है जो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 1 आएगा. तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/5. समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. सो Yes, बेसिकली sir. हमें क्या करना है? रेसिप्रोकल लेना है. तो अभी जो क्वेश्चन है, हाँ भूमि, व्हाट इज योर डाउट? मतलब अगर हमें टू का मल्टी इनवर्स का निकालना होगा तो फिर हमें उसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे आंसर 5 आएगा. 5 नहीं, 1 आएगा. ओके, 1 आएगा. हमें 1 आंसर चाहिए, तो ओके. मतलब 2 into 1/2. प्रयान, व्हाट इज योर डाउट? Sir, you cleared it. I forgot to lower my hand. Students, please lower your hand if you have understood. So which पलाश, question क्या Sir, डाउट isn't है? this So which basically question you are solving? multiplicative inverse is the what upside down number. I forgot. रेसिप्रोकल लेना है, दैट्स इट. Yes, ma'am. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर दो. कनन, क्या डाउट है? that was also what I was asking, that reciprocal. हाँ, तो रेसिप्रोकल ही लेना है, दैट्स इट. तो अभी वी So हैव which 2 raised question to you are solving? -4 प्लस 2 raised to -5 प्लस 2 raised to -6. तो पहले ये हमें सॉल्व करना है. सो दिस बिकम्स 1/2 raised to 4 प्लस 1/2 raised to 5 प्लस 1/2 raised to 6. ओके, अभी इनका एलसीएम क्या होगा, बता सकता है कोई मुझे? Sir, 24 into 2 25. power 6. 2 power 6. Very good. 2 raised to 4 will go in this 2 times. 2 raised to 2 times, so 2 raised to 2 plus 2 raised to 5 will go in this 2 times, so this is 2 plus 1 time. तो इसका आंसर क्या आएगा हमें? 2 raised to 2 कितना था? 4. 4 plus 3 7. So 7/2 raised to 6. Okay. Sir, how did it come 2 raised to 6? LCM. Oh, 2 raised to 6 का मतलब क्या है? 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 2 raised to 4 का मतलब क्या है? अभी इन दोनों में एलसीएम क्या आएगा, बताओ मुझे. 2 raised to 6 ही आएगा ना एलसीएम? Yes, sir. Yes, sir. अभी 7/2 raised to 6 है. 2 raised to 6 का वैल्यू कितना होता है पता है? 64. 64. 7/64. अभी इसको 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 64/7. बट ये ऑप्शन में हाँ दिया है ना, 9 1/7. पलाश, क्या डाउट है? After finding the LCM, you did the step 2 raised to 2 plus 2 plus 1. I did not understand that.
अभी 2�6 और 2⁴ है, तो 2⁴ विल गो हाउ मेनी टाइम्स इन 2�6? इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2�6 बनेगा? 4 से या 2 स्क्वायर? समझ में आया? समझ में आया पलाश? 2⁴ is equal to 16. This is equal to 64. LCM of these two is 64. Now 2⁴ 16 will go how many times in 64? 4. So can we write 4 as 2⁵2? Then 2⁵5 is 32. Okay. 32 will go how many times in 64? 2 times. तो सिर्फ 2⁵ यहाँ 1 नहीं लिखा है, 2 लिखा है एज इट इज. इसको आप 4 भी लिख सकते हो. समझ में आया अभी? Everyone understood the answer is 9 1/7. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ. एंड दिव्यान आपको Yes. कौन से पेपर में डाउट था? Sir, 2013, 2 and 9. And sir, also 7, you are told that you will clarify and tell. I'm not getting the original paper, so I have left it. Even you can leave that question, okay? Karina's Okay. also using 15 minutes every hour. So 15 minutes in 1 hour. The clock is set at the correct time at 9 a.m. Okay. What is the time when what is the correct time when Karina's watch first show 11 a.m.? Okay. So what question are we on? This is question number 2 from 2013. 13. हाँ. अभी जब 9 a.m. को करेक्ट सेट किया है, 10 a.m. को क्या टाइम होगा इन करीनाज वॉच? 9:45. Yes or no? Yes, sir. Yes, जब sir. actual टाइम 11 होगा तो कितना हो जाएगा टाइम? 10:30. जब यहाँ पर 12 हो जाएगा तो टाइम कितना होगा? Sir, 11:15. 11:15. हाँ. मतलब 12 एक्चुअल टाइम जब 12 है उसके पहले हमें टाइम चाहिए, करेक्ट? एंड 11 के बाद चाहिए. Yes or no? So we have two options. Either it is 11:30 or 11:40, correct? अभी Yes. जब 11:30 है तो टाइम क्या दिखाएगा? 11. नहीं, जब 11:30 है, देखो 11 के टाइम पे इट इज 10:30. अभी आधा घंटा एक्चुअल में आगे गया है. In 1 hour it is losing 15 minutes. So in 30 minutes it will lose 7.5 minutes, correct? Yes, sir. Yes, sir. Time point में रहेगा, so it is not possible. So we'll cancel out this. Now check for 11:40. अभी जब 11 o'clock है तो यहाँ 10:30 टाइम है, ठीक है? अभी 40 minutes. In 60 minutes it loses 15 minutes, correct? So in 40 minutes it will lose how much? 10. Correct? तो यहाँ पर हमें 11:40 की जगह टाइम क्या दिखेगा? 11. Is it clear? 11. Yes, sir. देखो टोटल डिफरेंस कितना आ गया? 40 मिनट्स का आ गया, क्योंकि यहाँ में 15 मिनट, यहाँ से यहाँ में 15 मिनट और ऊपर के 40 में 10 मिनट. समझ में आया? Yes, sir. हाँ. नेक्स्ट क्या डाउट है दिव्यान? 9th question. 9th क्वेश्चन आप नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो ना. 56 minus 5060 minus 506 minus 5600. ये तो बेसिक क्वेश्चन है. माइनस 5660 प्लस 506 प्लस 5000. तो अभी पहले एक एक ब्रैकेट सॉल्व कर लो. इसको सबट्रैक्ट करोगे तो क्या आंसर आएगा? चलो मैं I'll do 5060 minus 506. You get 4554
and here it is minus, and here 56. So 56 minus 4554 is equal to minus 4498. Okay, this is the first part which we have solved. अभी ये solve करेंगे तो minus sign as it is. अभी 5600 प्लस 506 कितना होता है 6106. इन दोनों को ऐड किया हमने माइनस 5660, तो हमें कितना मिला माइनस 446 एंड देन प्लस 5000. हाँ, कुछ डाउट है क्या? No, sir. Sir, when there is a minus outside the bracket, the signs change, no, but तो एक ही हो जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये फिर माइनस हो जाएगा. तो ब्रैकेट का साइन चेंज मत करो ना, एज इट इज रहने दो. अंदर का पार्ट कैलकुलेट करो, उसके हिसाब से आंसर सेम आ जाएगा. okay, sir. तो 49 minus 4994 plus 5000 है, so it I think comes out to be 56. Okay, sir. Thank you. देखो ये जो आप बोल रहे हो, ये दिस इज एज सेम एज ए ये देखो ये माइनस बी प्लस सी है, ठीक है. अभी आप अगर साइन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी माइनस सी. एक ही हो गया ना, तो क्या हो जाएगा बी माइनस ए प्लस सी. एक ही चीज है, तो आप सॉल्व करो, इसका आंसर सेम ही आएगा माइनस 446. या तो आपको क्या हो जाएगा पता है, यहाँ पर फिर आप ये साइन नहीं लोगे, अगर आप ये साइन हटा दोगे तो इसके बाजू में माइनस 446 आएगा. कैलकुलेशन चेंज नहीं होगा उससे. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, students, we are not going to solve 2020 on paper. Even I'll suggest you not to solve, okay? As practice, if you want just to improve your maths, you can do it, but not for the exam preparation, because it is very difficult, and sometimes it happens that you get demotivated or you get scared that such difficult questions are coming in the exam. So 2020 on paper, आप मत solve करो, okay? Sir, 21 or 20? 2021. Okay, sir. Is it clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we'll end our meeting. So now remaining papers. आज कौन सा पेपर किया हमने? 2014. 2014. 2014. Next class we have to do two we'll try to complete two papers, okay? 15, 16. उसके next class 17, 18. Then 19, 20 and 22 at the end. So in next 4 class we have to do how many papers? I think 6 papers, right? Yes, sir. So per Yes, class sir. either we'll cover 1.5 paper. Okay, sir. Yes, sir. Bye Thank you, sir. everyone. Bye, sir. Thank you. Bye, sir.